Hello student, in past video we will discuss the important term that is very essential while we are doing measurement of the physical quantity, that is accuracy and the precision. Okay, and as well as we are also try to differentiate the two word, okay, mistake and the error. Okay, so here we are trying to discuss various type of error are created whenever we are doing some measurement of the physical quantity, and this type of error how can be classified, and for that what we have to do so that we can got our answer accurately. Okay, so let me start. The question is that write the type of error in the measurement of the physical quantity and its explanation. ओके, यानी कि हमको जो भी हम मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी का कर रहे हैं उसमें जो भी हमारी एरर प्रोड्यूस हो रही है तो वो एरर कौन सी है, वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, यानी कि उसका पूरा क्लासिफिकेशन हम ये वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अंदर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एरर आर क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी. First is called the systematic error and another is called the random error. Okay, first is systematic error and second one is random error. In systematic error is again divided into the three types. बराबर. So first is the what, systematic error. By the systematic error can be divided in three parts. First is the instrumental error, second one is the imperfection in the procedure otherwise technique, यानी कि हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसकी प्रोसीजर में अगर कोई प्रॉब्लम हो that is also considered in this systematic error, and third one is a personal error. So these three errors are again classified in the systematic error, while in random error no classification additionally. Okay, so let me start. What is the systematic error? Error cause when we measure the value is different than the true value is called the systematic error. Means whenever we are doing the measurement and we are found that our answer is not exactly same as the true answer, that means that whatever the difference are generated in our reading from the true value, that is considered as this the systematic error. यानी कि हमारा रीडिंग तो एरर वाला ही हुआ ना अंदर, क्योंकि हमको चाहिए था ये आंसर पर हमको ये मिल रहा है, तो उसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो एरर हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, जनरेट हो रही है अंदर. समझ में आया? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक एरर? Error is caused when we measure the value is different than the true value. Whenever we are measuring the value which is different the true value, okay, then whatever the difference we are getting, that is considered as the error causing, and that is considered as the what, systematic error. Okay, and these error are always one directional type, यानी कि ये जो एरर होगी वो वन डायरेक्शनल टाइप होगी. यानी कि आप जब भी मेजरमेंट कर रहे हो, व्हेनेवर यू आर डूइंग द मेजरमेंट, देन मे बी योर आंसर इज ग्रेटर देन द ट्रू वैल्यू, अदरवाइज लेसर देन द ट्रू वैल्यू. समझ में आ रहा है आपको? तो कोई भी एक साइड पे ही एट अ टाइम आपको रीडिंग मिलेगा. ऐसा नहीं है कि एक बार आपको फर्स्ट रीडिंग में ग्रेटर देन मिला, अगेन करो तो भी हर बार ग्रेटर मिलेगा. हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको लेस देन, यानी कि कोई भी टाइम पे आपको या तो आपका जो करेक्ट रीडिंग है उससे ज्यादा रीडिंग मिलेगा या तो कम मिलेगा, पर सही वाला है वो तो नहीं मिलेगा. बराबर. इसीलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जो एरर जनरेट हुए उसको यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर के फॉर्मेट में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है अंदर. ओके, सो विच आर द सोर्सेस ऑफ दिस सिस्टमेटिक एरर दैट वी आर नाउ डिस्कस. मींस वी आर डिवाइडेड द सिस्टमेटिक एरर इनटू द थ्री पार्ट्स. First is considered as the instrumental error. Okay, for measurement we are using always one instrument. Okay, but if we are found that our instrument is not properly designed or there may be some problem while doing the operation, okay, so at that time we cannot एक्सेप्ट दैट वी आर गेटिंग द ट्रू वैल्यू फॉर द मेजरमेंट. बराबर. सीधी बात है, हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि हमको मिलेगा, क्योंकि हमारा डिवाइस ही अच्छी क्वालिटी की कंडीशन में या अच्छी क्वालिटी का या तो फिर अच्छी कंडीशन में अवेलेबल नहीं है अंदर. समझ में आ रहा है? सो व्हाट दे वांट टू से अस, द एरर अराइजेस ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिजाइन. बराबर. इनपरफेक्ट डिजाइन यानी कि उसका जो भी डिजाइन किया गया इंस्ट्रूमेंट का वो प्रॉपर ना हो, उसमें कुछ ना कुछ लोचा लापसी हो गया अंदर. बराबर. अदरवाइज कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि
मतलब क्या है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट उसको हम मेजरमेंट कर रहे हैं, पर उसका जो कैलिब्रेशन यानी कि उस पर जो मेजरमेंट के लिए जो भी कंसेप्ट दिया गया है, जो भी स्केल दिया गया है, उसको हम अच्छे से ना कर पाए, या तो फिर उसमें कुछ घिस गया हो या तो फिर टूट गया हो, तो उसकी वजह से हम प्रॉपर जो कैलिब्रेशन करना चाहते हैं, कैलिब्रेशन यानी कि जो रीडिंग रीड करना चाहते हैं वो हम कर ही ना पाए, तो भी क्या हुआ, सिस्टम की वजह से ही हुआ, इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही हुआ अंदर, बराबर। जैसे आपके पास एक स्केल है और स्केल यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई अंदर, बराबर, और मैं बोल रहा हूँ कि चलो ये लेंथ फाइंड करके दो, तो आपकी स्केल थोड़ी बहुत यहाँ पे जो रीडिंग बताए वो भी घिस चुके हैं, तो आप अच्छे से कैलिब्रेट कर पाओगे कि भाई यहाँ पे पॉइंट मिला मुझे, पर ये वाला रीडिंग कौन सा है, क्योंकि आपकी स्केल जो मार्किंग किया है वो थोड़ा बहुत क्या हो गया है, घिस गया है अंदर, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, कैलिब्रेशन, यानी कि रीडिंग लेने में हमको तकलीफ होती है अंदर, बराबर। और दूसरा बोला है जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, बराबर, यानी कि हम जब भी डिवाइस को उसकी नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं तो उसका 0 से 0 प्रॉपरली क्या होता है, कैलिब्रेट नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोलते, यानी कि जीरो यहाँ पे अलाइन नहीं होता है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स जैसे डिवाइस होते हैं वहाँ पे एक नहीं दो स्केल का यूज़ किया जाता है, एक मेन स्केल और उस पर मूव हो सके ऐसी वर्नियर स्केल होती है। तो वर्नियर स्केल का फर्स्ट आर्क और अपनी मेन स्केल का फर्स्ट वाला यानी कि 0 वाला, अगर ये दोनों लाइन में है तो हम बोल सकते हैं कि या हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्ट कैलिब्रेशन में अंदर, बराबर। पर अगर नहीं है तो फिर हमको वो पहले फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद वो डिवाइस को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा अंदर। तो समझ में आ रहा है व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर आर कॉजेज ड्यू टू द डिजाइन प्रॉब्लम, अदरवाइज कैलिब्रेशन प्रॉब्लम, अदरवाइज द जीरो एरर, यानी कि उसका जो फिटिंग होना चाहिए इनिशियल कंडीशन में वो अच्छे से ना हो तो भी प्रॉब्लम यहाँ पे हमको मिलेगा, यानी कि जो भी हम रीडिंग ले रहे हैं वो हमको सही रीडिंग मिलेगा नहीं अंदर, बराबर। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके समझाने का ट्राई किया गया कि इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलना क्या चाहता है। ओके, इफ वी आर ट्राइंग टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विच इज बॉइलिंग, यानी कि आपका एक आपके पास थोड़ा वाटर है उसको बॉयल कर रहे हो आप, बराबर। तो हमको पता है कि वाटर का बॉइलिंग कौन से टेम्परेचर पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास वॉट एवर थर्मोमीटर ये अवेलेबल है, ओके, दैट थर्मोमीटर शोज द टेम्परेचर ऑफ 104 इंस्टेड ऑफ द 100 डिग्री सेल्सियस। सो वी आर सेइंग दैट हियर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ थर्मोमीटर, नॉट ऑफ द प्रोसीजर, यस और नो, बराबर है। सिमिलरली वर्नियर कैलिपर्स का हमने वो 0 वाला समझा, वही हमको बताया गया अंदर, बराबर। फिर जब हम मीटर स्केल का यूज करता है तो उसका कोई एंड होता है वो टूट गया होता है, तो हमको रीडिंग लेने में क्या होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, कि भाई जो रीडिंग लिया उसमें से माइनस करूँ, प्लस करूँ, 0.1 करूँ, 0.2 करूँ, समझ में आ रहा है। तो ये सारी एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुई, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडरिंग एज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। Now second type is error is called the imperfection in the experimental technique or procedure, यानी कि कोई भी प्रैक्टिकल करना हो, मेजरमेंट करना हो तो उसकी एक टेक्निक होती है, कोई प्रोसीजर होती है, that we have to follow, but whenever someone are design the concept and they are define the procedure at a time there may be some loop are there, then we are again not getting the perfect answer। वो चीज exactly किसके साथ हुई थी, ओम के साथ हुई थी अंदर, ओके। सो ओम का लो क्या था, बराबर, कि V और I हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं फॉर द गिवन रजिस्टर्स के लिए अंदर, बराबर। फिर बाद में पता चला कि भाई ये लो तो टेम्परेचर की कंडीशन से बदल जाता है अंदर, समझ में आ रहा है। यानी कि उनके एक्सपेरिमेंट की पोजीशन में ये बताया नहीं गया था अंदर कि भाई टेम्परेचर का रोल यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए, अदरवाइज आपका रीडिंग चेंज होगा अंदर, बराबर। तो ये क्या हुआ, प्रोसीजर रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, प्रोसीजर में मेंशन करना रह गया था उससे, बराबर। तो यही चीज हमको यहाँ पे बताई गई है कि जब थर्मोमीटर हम यूज कर रहे हैं, बराबर, तो इट मेजर द बॉडी टेम्परेचर इज नॉट प्रॉपर्ली प्लेस इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडी, देन इट विल नॉट गिव द ट्रू वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ओके। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो या तो फिर खुद का अपना टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर कर रहे हो, पर उसका प्लेसमेंट आप अच्छे से नहीं करोगे तो सीधी सी बात है वो थर्मोमीटर आपकी बॉडी का परफेक्ट जो टेम्परेचर है वो मेजर करके कभी भी देगा नहीं अंदर, बराबर है। External conditions such as the change in temperature, humidity, wind velocity during the experiment may systematically affect the
एंड मे सिस्टमेटिकली अफेक्ट द रीडिंग। यानी कि टेम्परेचर लिखा है यहाँ पे, पर टेम्परेचर की बात नहीं है, ऑलरेडी टेम्परेचर लिखा है, पर हमारा जो सिस्टम का रीडिंग है उस पर कभी ना कभी वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं अंदर। तो जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसकी प्रोसीजर में जो भी उसके रिलेटेड चीज़ है वो हमको ऑलवेज मेंशन रखना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ से वो बदल रहा है, तो वहाँ पे लिखना होगा ये चीज़ भाई यहाँ पे चेंज नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करो तो ही आपका रीडिंग जो आने वाला है वो आएगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ यहाँ पे वर्क करती है। तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की एरर के बारे में पता चल गया। एक्सपेरिमेंट टेक्निक में बोलते हैं कि भाई डिवाइस को इस तरह से पकड़ो, पर आप नहीं पकड़ोगे बराबर, तो फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम होगा अंदर। या तो फिर वहाँ पे बोला ही नहीं गया होगा कि भाई आपको क्या करना है प्रैक्टिकल करने के लिए। तो ये सारी क्या है, प्रोसीजर रिलेटेड एरर है अंदर, क्योंकि हमको गाइडलाइन ही नहीं दिया गया है। दैट्स वाई वी आर गेटिंग द एरर। ओके, एंड थर्ड टाइप इज एरर इज कॉल्ड द पर्सनल एरर। चलो हमने जो हमारा डिवाइस था वो अच्छी क्वालिटी का परफेक्टली कैलिब्रेटेड ले लिया है बराबर, जो भी उसकी प्रोसीजर है वो साइंटिस्टों ने डिफाइन किया, तो 100% एक्यूरेटली होने के बाद ही डिफाइन की है। तो ये दो चीज़ तो हमारी ओके, फिर भी हम रीडिंग लेते हैं तो कभी कभी क्या आती है, एरर आती है। तो उसका रीज़न क्या है यहाँ पे, तो वो क्या है, पर्सनल एरर है अंदर। क्या है, पर्सनल एरर बराबर। तो क्या बोल रहा है कि पर्सनल एरर अराइजेस ड्यू टू द इंडिविजुअल बायस, यानी कि हर कोई की कैपेबिलिटी कैसी है उसके हिसाब से उसके रीडिंग में भी एरर जनरेट हो सकती है या तो फिर नहीं भी होगी अंदर बराबर। आपको पता होगा कि आपके के सारे फ्रेंड के रिजल्ट में एक से मार्क आते हैं, नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि सब अपने दिमाग का अलग अलग एंगल से यूज करते हैं अंदर। तो किसी को प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत, कोई सिंसियरली करेगा, कोई मस्ती में करेगा, कोई टाइम पास के लिए खड़ा रहेगा और बोलेगा सर मेरा रीडिंग नहीं आता, नहीं जाएगा भाई। तुझे जो बोला गया है वो अगर अच्छे से खुद से नहीं करेगा तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे का रीडिंग आएगा। प्रोसीजर हमको अच्छे से समझा दिया गया अंदर बराबर, फिर भी हम जब कर रहे हैं तो वो प्रोसीजर हमको याद नहीं रहती और हम वो प्रोसीजर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम प्रोसीजर का थोड़ी हुआ, वो हमारा हुआ। हमको सब बोला गया फिर भी हम उसको फॉलो नहीं करिए। सो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल बायस, यानी कि हर किसी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है सेम चीज करने के लिए अंदर बराबर। सेकंड आता है लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ अपर्चर्स। प्रैक्टिकल में बोला गया, फिगर भी देखा कि आपको इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से अरेंज करना है, पर वो बंदा अपने हिसाब से नहीं कर रहा है अंदर, तो भूल किसकी, उसकी खुद की हुई ना अंदर बराबर। तो लैक ऑफ इम्प्रॉपर सेटिंग भी क्या हो गया, अगर वो अच्छे से सेट नहीं करेगा तो सीधी सी बात है उसका जो रीडिंग आएगा वो गलत ही आएगा ना अंदर बराबर। फिर दूसरा आता है इंडिविजुअल केयरलेसनेस, यानी कि जो आपको केयर लेनी है, बोला गया है कि भाई यहाँ पे इस तरह से उसको पकड़ो अंदर, इस तरह से आपको देखना है, इस तरह से काउंट करना है, जो भी है आपको बोला गया है, पर आप यहाँ पे केयर नहीं कर रहे हो, मस्ती में ले रहे हो अंदर, तो भी आपका रीडिंग कभी भी ज्यादा आएगा नहीं। प्रीवियस ईयर की बात करूँ, हम मेजरमेंट के लिए देते हैं बराबर, एक छोटी सी पट्टी इस साइज की देते हैं और बोलते हैं चलो इसकी थिकनेस मेजर करो, और कुछ बच्चे इसके आंसर लेके आते हैं, सर मेरा आंसर 30 मीटर आया। लॉजिक लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे खाली इतनी सी छोटी पट्टी ली है, वो 30 मीटर लंबी हो सकती है। हमारा जो रूम है घर का या आप जहाँ पे भी बैठे हो उसकी साइज हार्डली 4 to 5 मीटर लंबा होगा अंदर बराबर है। तो कहाँ 30 मीटर, सोचो पूरी सोसाइटी आ गई 30 मीटर में तो अंदर, क्लियर। और मेजरमेंट लाके कॉन्फिडेंटली बोलते हैं सर मेरा 30 मीटर आंसर है। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं किलोमीटर में भी आंसर ले आते हैं, अरे भाई थोड़े कॉमन सेंस लगा, ये तेरे हाथ में छोटा सा है तो सेंटीमीटर में ही आंसर होगा, किलोमीटर कहाँ घुसा रहा है अंदर बराबर। तो दैट्स ऑल एरर आर कंसिडर्ड एज द व्हाट, पर्सनल एरर। ओके, एग्जाम्पल्स दिया गया है कि इफ यू हैव द हैबिट ऑलवेज होल्ड योर हेड अ बिट टू फार टू द राइट व्हाइल रीडिंग द पोजीशन ऑफ द नीडल ऑन द स्केल देन एरर कैन बी इंट्रोड्यूस ड्यू टू पैरेलैक्स। यानी कि आप जब भी स्केल पे मेजरमेंट ले रहे हो तो यहाँ का प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि जो भी आपको रीडिंग ले, सपोज यहाँ पे लेना है तो आपकी आई को इसके वर्टिकली ऊपर डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, इसका वर्टिकल है, ताकि आपको पैरेलैक्स का प्रॉब्लम ना हो। अभी पैरेलैक्स है क्या, यहाँ पे पैरेलैक्स मेथड वो हमने आगे स्टडी की, उसकी बात नहीं है अंदर बराबर। पैरेलैक्स हमारी आई के लिए बोला गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो हैंड है उसकी फर्स्ट फिंगर को आपके आगे रखो और फिर एक आंख बंद करो, दूसरी आंख बंद करो, ऐसे 1 by 1 अल्टरनेटली करो, तो आपको आपकी फिंगर है ना मूव होती दिखेंगी, उसको पैरेलैक्स बोलते हैं। हमारी दोनों आई की जो कैप्चरिंग एंगल है ना वो थोड़े डिफरेंट है अंदर, 30 डिग्री वो शिफ्टेड है अंदर
बराबर। तो उसकी वजह से यहाँ पे बोला जाता है कि परफेक्ट ले, ताकि आप जो भी परफेक्ट है वो ही यहाँ पे रीडिंग ले सको अंदर, बराबर। फिर बात कर रहे हैं कि सिस्टमेटिक एरर, चलो है सही बात है, तो हम सारी की सारी एरर भाई कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट अच्छी क्वालिटी का होगा, प्रोसीजर परफेक्ट होगी, और जो इंडिविजुअल है वो भी केयर के साथ प्रैक्टिकल करेगा, तो ये सिस्टमेटिक एरर को एज पॉसिबल एज हम रिड्यूस कर सकते हैं और मे बी जीरो भी कर सकते हैं अंदर, बराबर है। और अब दूसरी जो एरर आती है उसका नाम क्या है भाई, रैंडम एरर है। अब ये रैंडम एरर क्या है अंदर, बराबर। सो व्हेनेवर वी आर टेकिंग द एक्सपेरिमेंट, वही ओम की बात हो रही है अंदर, बराबर, कि जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो कुछ फैक्टर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के ऐसे होते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल की वैल्यू पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और वो कब किस तरह से बदलेंगे उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है अंदर, बराबर। तो उस टाइम पे आपकी जो एरर जनरेट होगी वो भी क्या होगी, रैंडमली जनरेट होगी अंदर, समझ में आ रहा है। रैंडमली यानी कोई फिक्स अश्योरिटी नहीं होगी कि हर बार यही इतना चेंज ही मिलेगा अंदर, कोई भी आपको चेंज मिल सकता है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए उसको रैंडम बोला गया अंदर। सो एरर विच अकर इरेगुलरली एंड रैंडम विथ रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज आर कॉल्ड द रैंडम एरर, बराबर। वो कभी भी हो सकती है, ऐसा जो है कि हर बार यही टाइम पे ही होगी अंदर, बराबर, और वो रैंडम होगी, कोई भी साइन मिल सकती है, प्लस माइनस कुछ भी, और कोई भी साइज उसकी मिल सकती है, 10 का भी डिफरेंस आ सकता है, 1000 का भी डिफरेंस आ सकता है, 0.1 का भी डिफरेंस आए। कभी कभी ऐसा हो कि आपका इंस्ट्रूमेंट गलत हो, बराबर, पर वो एरर की वजह से कभी कभी आपका आंसर सही भी हो जाता है, पर कुछ भी हो, ये रैंडम एरर हमारे कंट्रोल की बात नहीं अंदर, ओके। एंड दिस एरर आर एक्चुअली अराइज ड्यू टू द रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, यानी कि एक्सपेरिमेंट की जो कंडीशन है वो तो हम ट्राई कर रहे हैं मेंटेन, बस सारी की सारी कंडीशन हम मेंटेन नहीं कर सकते अंदर, बराबर। तो उसमें जो भी प्रिडिक्शन के बिना, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल हो या तो फिर रैंडम फ्लक्चुएशन यहाँ पे अगर आ जाता है, तो यहाँ पे एरर जो जनरेट हुई है कौन सी होगी भाई, रैंडम एरर जनरेट होगी कि नहीं होगी अंदर, बराबर। फॉर एग्जांपल आप कॉइल रिलेटेड को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे कि आपका जो पंखा चल रहा है ऊपर माथे पे, उसका लाइट बिल आपको मेजर करना है कि भाई फाइनली वो कितना मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली पंखा चलाते हो तो 3-4 घंटे में वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो मे बी उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा थोड़ा अंदर। तो सीधी सी बात है, आपका कैलकुलेशन कभी मैच ही नहीं होगा, और वो रैंडम है, वो हीटअप कितना होगा वो डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन कौन सी है, आप कौन सी स्पीड पे चला रहे हो, बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, बराबर है। फिर मटेरियल कितना ओल्डर है उस पर भी डिपेंड करता है, मटेरियल की क्वालिटी क्या है वो भी डिपेंड, क्योंकि कोई मटेरियल थोड़ी डिग्रेड होगी तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा भी हो जाएगी अपने आप, कोई 1 घंटे में भी गर्म हो जाएगा, बराबर। तो ये सारी चीज़ रैंडम में कंसीडर करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, बोला गया कि व्हेन द सेम पर्सन repeat the same observation, it is likely that he may got different reading of everything। सीधी बात है, अगर ये एरर हम अंदर ऐड होती रहेगी तो फिर हम कभी भी एक जैसा रीडिंग अचीव नहीं कर पाएंगे अंदर, बराबर। और ये जो एरर होती है पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी टाइप की हो सकती है अंदर, बराबर। तो ये वीडियो में फाइनली हमने क्या किया, जो एरर्स थे उसकी कैटेगरी को अच्छे से स्टडी किया। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें लिस्ट काउंट एरर का इंपॉर्टेंस क्या आता है, जो हमको अच्छा प्रिसीजन देता है अंदर, बराबर। और फिर मैथमेटिकली हम देखेंगे अंदर कि किस तरह से एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर फाइंड करके हम जो भी हमारी मेजरमेंट है उसका थोड़ा बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट दे पाए अंदर, बराबर। और साथ में हम देखेंगे कि एवरेज का इंपॉर्टेंस भी क्या है। ओके, थैंक यू।